Next question is 61st question. The electronic velocity in the fourth Bohr's orbit of hydrogen is v. The velocity of the electron in the first orbit would be. तो इस क्वेश्चन में देखिए वेलोसिटी वाला रिलेशन जो था आपको बताया है मैंने पहले. वेलोसिटी इज इक्वल टू Vn is equal to Z by N into 2.18 into 10 raised to power 6 meters per second. You have to just remember that velocity और Z and N में क्या relation है. आगे वाला चाहे याद रहे तो कोई बात नहीं, अगर रख सको तो this will be very beneficial also. But this is very important. ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि Vn या velocity और Z और N में क्या relation है. अब इसने बोला यहाँ पे कि वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी फोर्थ बोहर्स ऑर्बिट में कितनी गिवन है v, और वेलोसिटी फर्स्ट में क्या होनी चाहिए, इट शुड बी 4v, बिकॉज अगर फोर्थ में, अगर फर्स्ट में देखिए 4 है, 4v है, दिस इज v1, and what will be v4? v4 will be 4v divided by n, that is 4, that will be equal to v. It has to be, v1 has to be 4v, because अगर v4 is equal to v है तो आपने क्या करना है, it will be 4 times in case of first orbit. You have to just remember this relation vn and n का क्या relation है, they are inversely proportional to each other. इस केस में दे रहा है कि फोर्थ बोहर्स ऑर्बिट में अगर ये v है तो फर्स्ट में क्या हो जाएगी, इट विल बी 4 टाइम्स, सो इट विल बी 4 into v. It has to be, answer will be a 4v. Next question is 62nd question. The wavelength of the radiation emitted when in a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary 1 would be Rydberg constant is equal to 1.097 into 10 raised to power 7 मीटर इनवर्स में रिडबर्ग कांस्टेंट गिवन है, और आंसर्स जो है नैनोमीटर्स में गिवन है. तो सबसे पहले तो आप वेवलेंथ निकालिए, मीटर्स में निकालिए, उसके बाद उसको नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करो. तो क्या रिलेशन यूज होगा 62nd क्वेश्चन में, इट विल बी 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square. इसमें it falls from infinity to stationary 1, stationary state 1, so it will be 1 by 1 square minus 1 by infinity, or anything divided by infinity will be 0. So it will be 1 by lambda is equal to r. So lambda will be equal to 1 by r. So lambda will be equal to 1 by r, and r's value is given, that is equal to 1 divided by 1.097 into 10 raised to power 7 meter inverse. So it will be, पहले आएगा आपके पास मीटर्स में निकालना है आपने, अगर if you calculate this will be equal to 91.1 into 10 raised to power minus 9 meters. This would be 91.1 into 10 raised to power minus 9 meters. इसको करना है नैनोमीटर्स में कन्वर्ट. तो एक नैनोमीटर जो है आपको पता है that is equal to 10 raised to power minus 9 meters. So ये कितने नैनोमीटर्स के बराबर होगा ये? This will be equal to 91.1 nanometers. So answer has to be C in this case, 91 nanometers. तो एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया हुआ, wavelength of the radiation emitted when in a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary state 1 would be. फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट पे आ रहा है, ये स्टेशनरी स्टेट 1 पे आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, तो इट विल बी 1 by 1 square minus 1 by infinity, and 1 by infinity will be 0. We are left only with r into 1 by 1, that is r. 1 by lambda is equal to r. Lambda will be 1 by r. It will be equal to 1 by r value given है आपको 1.097 into 10 raised to power 7. And if we calculate this will be equal to 91.1 into 10 raised to power minus 9 meters, and it will be equal to 91.1 nanometers. So answer will be 91 nanometers. 63rd question. If energy of the electron in the hydrogen atom in some excited state is minus 3.4 electron volts,
then what will be its angular momentum? तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए n की वैल्यू, एनर्जी शेल की वैल्यू, एनर्जी लेवल की वैल्यू. You require first of all in this case value of n, and he is giving कि इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक्साइटेड स्टेट पे है, कौन सी वैल्यू है n की वो हमें पता नहीं है. और आपको एक रिलेशन पता है एनर्जी के बारे में कि En इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में क्या रिलेशन बताया गया था आपको? En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम. This was the relation in electron volts per atom. So we have to calculate n, और इसने बोला सम एक्साइटेड स्टेट है कोई, हमें n नहीं पता, उसमें एनर्जी जो है En जो है that is equal to -3.4. This will be equal to -13.6 upon n square. First of all, calculate the value of n from this. If we calculate the value of n from this equation, this will be equal to 2. तो अगर वैल्यू 1.97, 1.93 ऐसे करके भी आ रही है, you will take it as 2. n will be equal to 2. पहले n square निकालोगे, उसके बाद n निकालोगे स्क्वायर रूट लेके, and n in this case is 2. और अगर n पता चल गया तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है? तो बोहर्स पोस्टुलेट्स में मैंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम mvr is equal to nh by 2 pi. So n आ गया 2. So what will be the value? 2 into h upon 2 pi. और अगर वैल्यूज डाल दें सारी ये 2 cancels out, h की वैल्यू डाल दें 6.6 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड्स डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू डाल दें 3.14. And if we calculate this, this will be equal to 2.1 into 10 raised to power -34 kg meter square per second. So this will be B option, 2.1 into 10 raised to power -34 kg meter square per second. तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला एम था n निकालना, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसके लिए वैल्यू ऑफ n चाहिए हमें सबसे पहले. इसने बोला था एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन सम एक्साइटेड स्टेट इज -3.4. En is equal to -13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम. सो En की वैल्यू दी हुई है -3.4. n निकालना है. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैलकुलेटेड n and it came out to be 2. Now we put this value in this equation, n 2 डाल दें यहाँ पे तो एंगुलर मोमेंटम mvr आ जाएगा, and 2 डालना 2 cancels out, we are left with h upon pi. h is 6.6 into 10 raised to power -34 divided by pi is 3.14, and we calculated this is equal to 2.1 into 10 raised to power -34. So answer is B. 64th question. The conditions for a stable electron orbit in hydrogen atom is. तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है बोहर ऑर्बिट का या बोहर्स मॉडल का, जिसमें उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन तब तक स्टेबल है एक ऑर्बिट में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्यों स्टेबल है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में? बिकॉज उस पे दो तरह के फोर्सेस लग रही हैं, एक तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने बताया था आपको, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, इज इक्वल टू Zd स्क्वायर kZd स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. Z है हाइड्रोजन के केस में इट विल बी 1. इफ वी टेक k आल्सो इक्वल टू 1, so it will be E square upon R square. First of all, let me write it down that it will be equal to mv square upon r. This is the centrifugal force. So it will be k1 ले और Z is 1. In case of hydrogen, it will be E square upon R square is equal to mv square upon r. तो अगर इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में स्टेबल होना है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए,
that E square upon R square will be equal to mv square upon R. This is the condition and it will be A option. E square upon R square is equal to mv square upon R. 65th question. An electron of mass m and charge E is accelerated from rest through a potential difference V in vacuum. Its final speed will be पोटेंशियल डिफरेंस अगर इलेक्ट्रॉन को चार्ज ई वाले इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस V का दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो आती है जिससे एक्सेलरेट होगा वो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ev. दिस इज द इक्वेशन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन दैट इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ev. अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस V से की हेल्प से एक्सेलरेट कर रहे तो फाइनल स्पीड पूछ रहा है. Half mv square is equal to ev and v square will be equal to ev upon m. What will be v? It will be under root of 2 ev upon m. So this will be final velocity, final speed 2 ev upon m raised to power half. So it is the A option. Next question, 66th question. The ratio of radii of the first 3 Bohr orbits is 66th question. आपको पता है इस क्वेश्चन में कि Rn क्या होता है. Rn is equal to R1 into n square. This is the relation Rn is equal to R1 into n square. So, ratio of the radii of the first 3 Bohr orbits. So, R1 क्या होगा? R1 will be R1 into 1 square. What will be R2? R1 into 2 square. What will be R3? R1 into 3 square. So, what will be the ratio? R1 is to R2 is to R3 is equal to 1 square 1, that is 2 square 4 is to 3 square 9. So ratio will be 1 is to 4 is to 9. Just you have to remember the formula that Rn is equal to R1 into n square. अगर ये पता है आपको तो रेशियो इजीली निकल जाएगा. R1 की वैल्यू डाल ली, n1 डाल दिया, R2 के लिए n2 डाल दिया, R3 के लिए n3 डाल दिया और रेशियो जो आया that is 1 is to 4 is to 9. Next question, 67th question. The number of vacant d orbitals in completely excited chlorine atom is. So number of vacant d orbitals निकालने हैं in completely excited chlorine atom. पहले तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. दैट इज 1s2 2s2 2p6 10 हो गए. नेक्स्ट इज 3s2 3p5. तो एक्साइटेशन करनी है इसकी कंप्लीट एक्साइटेशन. वैसे है 3s2 3p5 तो ये 3s एंड दिस इज 3p. एक्साइटेशन जब करेंगे तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है कहां जाने हैं? 3d में जाने. कंप्लीट एक्साइटेशन देखिए इसकी. एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा यहां से आगे चला जाएगा. ये वाला भी एक आगे चला जाएगा, ये वाला भी एक आगे चला जाएगा. यहां पे रह गए 3 इलेक्ट्रॉन्स. कितने जंप ओवर किए? 1 2 3 1 2 3. So how many vacant d orbitals are present in the completely excited chlorine atom? There are 2 vacant orbitals. So answer has to be 2.
68th question, the number of nodal planes in dxy and dz square orbitals are. So nodal planes क्या होते हैं? Nodal planes are the planes passing through the nucleus where the probability of finding the electron is 0. तो nodal planes का मैंने फॉर्मूला बताया था कि that is equal to L वैल्यू. तो dxy के लिए तो निकल जाएगा कि dxy के लिए nodal planes अगर निकालने हैं that will be equal to value of L. वैल्यू ऑफ एल डी के लिए क्या होती है? एल की वैल्यू 0 1 2 ऐसे याद रखिए आप 0 1 2 एस पी डी. तो डी के लिए एल इज 2. नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन dxy विल बी 2. बट इन केस ऑफ dx स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स में dz स्क्वायर की शेप ऐसे होती है along the z axis. दिस इज द z axis. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के डबल शेप ऐसे को होगा ये. और xy प्लेन पे जहां पे नोडल प्लेन्स हो सकते थे इसमें, वहां पे इसमें एक रिंग है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं dz स्क्वायर के केस में. तो जहां पे नोडल प्लेन्स पास होने थे xy प्लेन्स पे, वहां पे इस केस में dz स्क्वायर के केस में देयर इज अ रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द xy प्लेन. तो इस केस में there are no nodal planes in case of dz sphere. There will not be presence of any nodal plane in case of dz sphere. dxy में there will be number of nodal planes equal to L, that is L is equal to 2. The answer has to be 2 and 0 respectively. So B answer होगा 68 का 2 and 0 respectively. Next is degenerate orbitals, atomic orbitals have almost equal energies. बिल्कुल exactly equal energies नहीं होंगी, almost equal energies. 69th का degenerate atomic orbitals have nearly equal energies. थोड़ा सा difference क्यों आता है? Due to the orientation of the electrons. जैसे p वालों की बात करें आप, px, py, pz, वैसे तो कह दिया जाता है कि they are equal in energies, लेकिन इनकी जो ओरिएंटेशंस हैं इलेक्ट्रॉन्स की, एक तो है देखिए px में along the x axis, if this is x axis this is px. py में it will be along y axis, if this is y axis this is py. z में it will be along z axis, if this is z axis this will be pz. So due to different orientations in the space, they have slight difference in their energies. So degenerate atomic orbitals have nearly equal energy is the correct option. B will be the correct option. Nearly equal energies. 70th question. The electrons identified by quantum numbers n and l, और n और l की values given है, can be placed in order of increasing energy from the lowest to highest as. तो आपको पता है कि बोहर-बरी रूल क्या कहता है? एनर्जीज जो है दे हैव टू बी डिसाइडेड बाय n प्लस l रूल. जिस केस में n प्लस l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होनी है, जिस केस में n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी है. इसमें देखिए n प्लस l सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? इट विल बी फॉर फर्स्ट, n इज 4, l इज 1. फर्स्ट केस देखें n प्लस l आ रहा है 5. सेकेंड केस देखें n प्लस आ रहा है, n प्लस l आ रहा है 4. थर्ड केस देखें n प्लस l इज 5. फोर्थ केस देखें n प्लस l इज 4. तो ये दोनों इक्वल है एंड फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल है. लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड में जब आपने डिसाइड करना है कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. तो n की वैल्यू किसमें ज्यादा है? फर्स्ट एंड थर्ड में. फर्स्ट की n इज 4. तो फर्स्ट केस जो है उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है, दिस इज द मैक्सिमम. फर्स्ट इज मैक्सिमम. उसके बाद इट विल बी थर्ड. उसके बाद आपने सेकंड और फोर्थ में डिसाइड करना है. सेकंड एंड फोर्थ देखिए n प्लस l दोनों के लिए 4 आ रहा है, लेकिन n किसका ज्यादा है?
सेकंड का n is 4, तो सेकंड वाले की एनर्जी ज्यादा होनी है, उसके बाद इट विल बी फोर्थ. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे ज्यादा एनर्जी जो होनी है फर्स्ट की होनी है. सबसे ज्यादा एनर्जी जो है फर्स्ट की है, उसके बाद थर्ड की है, उसके बाद सेकंड की है, उसके बाद फोर्थ की है. It has been decided by the Bohr-Bury rule, n plus l rule. जिसका n plus l ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. फर्स्ट एंड थर्ड में n plus l बराबर आ रहे थे. अगर बराबर आ रहे हैं n plus l, तो मैंने देखा n की वैल्यू किसकी ज्यादा है इन दोनों में. फर्स्ट एंड थर्ड में देखिए n की वैल्यू फर्स्ट वाले में ज्यादा है, n is 4, तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होनी है, तो फर्स्ट की एनर्जी थर्ड से ज्यादा. उसके बाद सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में n plus l वैल्यूज बराबर आ रही थी, 4 and 4 ईच. तो सेकंड एंड फोर्थ में देखिए, सेकंड में n is 4 और फोर्थ में n is 3, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सेकंड की. तो सेकंड की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू फोर्थ. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. फर्स्ट विल बी द आंसर, A विल बी द आंसर इन दिस केस. 70th का A ऑप्शन. 71st क्वेश्चन. The masses of photons corresponding to the first lines of Lyman and Balmer series of the spectrum of hydrogen atom are in the ratio of. तो masses के बारे में रेशियो पूछा है. अब आपको पता है कि 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. लेकिन मासेस इन्वॉल्व है, तो आप क्या कीजिए कि लैम्डा की वैल्यू लिख दीजिए. लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. दिस इज सेम, h by mv. 1 by lambda, लैम्डा की वैल्यू डाल दी मैंने h upon mv. फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू निकाल लें कि h upon mv फर्स्ट केस में इज इक्वल टू r into Lyman, first lines of Lyman and Balmer series. फर्स्ट लाइन ऑफ Lyman क्या होनी है? 1 by 1 square minus 1 by 2 square, and this will be equal to r into 3 by 4. और सेकेंड केस में देखिए, let the mass in that case be m dash, v upon h. This will be equal to r into 1 by Balmer series है तो 1 by 2 square, फर्स्ट लाइन है तो 1 by 3 square. This will be equal to r into 5 upon 36. If we calculate this, this will be r into 5 by 36. आपको चाहिए इसमें masses of the photons corresponding to first line of the Lyman and the Balmer series of the spectrum of hydrogen atom are in the ratio of. मीन्स क्या रेशियो चाहिए आपको? m is to m dash का रेशियो चाहिए. वो कैसे आ सकता है? m is to m dash का रेशियो कैसे आ सकता है? This divided by this. You have to divided by, and if we calculate this, r cancels out and the ratio will be equal to 27:5. So this will be equal to 27:5, 27 upon 5. तो इस क्वेश्चन में देखिए, निकाला मैंने 1 by lambda है, और lambda होता है h upon mv. m का रेशियो चाहिए, तो मैंने ये कैलकुलेट किया, h upon mv is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. mv upon h will be equal to r into first line of the Lyman series will be 1 by 1 square minus 1 by 2 square, that is equal to r into 3 by 4. Secondly, second case में m dash v upon h is equal to r. Balmer series की first line, that is r into 1 by 2 square minus 1 by 3 square, that is equal to r into 5 by 36. हमें चाहिए m upon m dash. तो कैसे निकलेगा? इसको डिवाइड कर दें इससे, नीचे ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दें, that will give you m upon m dash. So it will be r into 3 by 4 divided by r into 5 by 36, that is equal to 27:5. This will be the answer, and this is A option. Next is 72nd question. The condition for the stable wave is, now is asking the condition for the stable wave.
पहले हमने किया स्टेबल ऑर्बिट, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर स्टेबल वेव। मीन स्टेबल कब होगी वेव? जब वो आउट ऑफ फेज ना हो, दे हैव टू बी इन फेज, दे शुड नॉट बी आउट ऑफ फेज। 72nd, तो वेव्स हैव टू बी इन फेज, और इन फेज होने के लिए वेव्स का ये जो पूरा है, मैं कह रहा हूं कि क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है बहुत कम है, ये सर्कुलर मान लें एग्जैक्टली, तो दिस विल बी पूरा का पूरा ये क्या आएगा? दिस विल बी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। और अगर फेज में होनी है वेव्स ये, तो 2 पाई आर जो है दैट शुड बी इक्वल टू जितनी वेव्स हैं। अगर nth शेल की बात हो रही है, nth शेल में n वेव्स होंगी, एक वेव की लेंथ कितनी होती है? लैम्डा, वेवलेंथ जो है। तो 2 पाई आर जो है दैट शुड बी इक्वल टू n इंटू लैम्डा। अगर स्टेबल होना है वेव्स को, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को, तो n लैम्डा जितनी वेव्स हैं इसमें टोटल, दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई r व्हिच इज द सर्कमफ्रेंस, and that circumference is equal to 2 pi r. This will be equal, this should be equal to n lambda, and अगर ये condition fulfill होती है तो electronic wave will be stable. अगर this is not fulfilled, then they will be out of phase. They will be out of phase like this. They will not be in phase. तो stable होने के लिए they have to be in phase, और in phase होने के लिए जितनी waves हैं ये, उनका जो पूरे का पूरा wavelength आ रही है सारी waves की, that should be equal to 2 pi r which is the circumference. So answer has to be n lambda is equal to 2 pi r, which is C option. So C is the correct option in this case. 72nd का C answer. The 73rd question is, what is the ratio of the de Broglie wavelengths for electrons accelerated through 200 volts and 50 volts? So now you know the relation that lambda is equal to 12.28 divided by under root of V angstrom. This relation you have to remember, that lambda is equal to 12.28 divided by under root of V angstroms. तो फर्स्ट केस देखिए कि 200 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, सो इन दिस केस फर्स्ट केस में लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 12.28 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 200। सेकंड केस में लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 12.28 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 50। नाउ ही इज आस्किंग फॉर द रेशियो ऑफ द de Broglie wavelengths. Lambda 1 upon lambda 2 you have to calculate. So it will be lambda 1 upon lambda 2. 12.28 they will cancel out. We are left with 1 upon 200 under root divided by this. That means it will be into under root of 50. This is equal to under root of 50 upon 200. This will be equal to under root of 1 upon 4. That is equal to 1 upon 2. So ratio will be equal to 1:2. So answer is, correct option in this case will be 1:2, that is A option. Next question, 74th question. If each orbital can hold a maximum of 3 electrons, the number of elements in the 4th period of periodic table is. अब फोर्थ पीरियड में आपको पता है कितने एलिमेंट्स होते हैं? वैसे सबसे पहले तो ये आइडिया होना चाहिए आपको कैसे वेरिएशन है एलिमेंट्स की। 2, 8, 8, 18। तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आर देयर, और 18 एलिमेंट्स कब हैं? जब आप कंसीडर करते हो कि एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक फैक्ट है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब वो कंसीडर करके हम देखें तो एक्चुअल में जो पीरियोडिक टेबल है दैट हैज 18 एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए जाएं तब कितने एलिमेंट्स होंगे? तो यूनिटरी मेथड से दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक ऑर्बिटल में, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड? 18। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं एक
ऑर्बिटल में, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी पॉसिबल? 18 डिवाइडेड बाय 2 into 3, that is equal to 27 elements. So it will be 27, C option 74th का। तो देखिए ऐसे किया, सबसे पहले तो आपको फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, यू शुड नो दैट 18 एलिमेंट्स होते हैं फोर्थ पीरियड में। और नॉर्मली आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड आर 18। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे यूनिटरी मेथड से? दैट आई हैव कैलकुलेटेड 18 upon 2 into 3, that is equal to 9 into 3 is equal to 27. So answer will be 27, 74th का C answer। 75th question, correct set of 4 quantum numbers for valence electron of rubidium is Z दिया हुआ है 37, Z is 37. First of all, you have to write the electronic configuration corresponding to 37. तो configuration लिखें, लास्ट में आने हैं 3d10 तक, आपको पता है आर्गन 3d10 4s2, यहां तक कितने हो जाते हैं? 30। और उसके बाद बारी आनी है 4p6, 36 हो गए, एंड आफ्टर दैट 5s1। So this is the electronic configuration for Z equal to 37 वाला जो एटम है उसके लिए। अब इसने पूछा है the correct set of 4 quantum numbers for valence electron, कौन सा है इसमें? देखिए 5s1। इसके लिए आपने correct set of quantum numbers लिखना है। 5s के लिए n क्या हो जाएगा? 5, l क्या हो जाएगा? s वाली सब शेल है तो l will be 0, और आगे m क्या होना चाहिए? it will be 0, और s क्या होना चाहिए? it can be plus minus half, anything, it can be plus half also, minus half also। so n5 l0 m0 s will be plus half। so कौन सी ऑप्शन है इसमें? देखिए 500 वाली a की ऑप्शन है, तो आंसर will be a। so correct answer in this is a option 500 plus half। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए बस सबसे पहले 37 वाली। 30 तक आपको पता है आर्गन 18 हो गया, 3d10 and 4s2, this is up to 30, and after that it will be 4p6, 36 हो गए यहां तक, 5s1 37 हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा आ गया? 5s1, n क्या होगा इसके लिए? 5, s के लिए l क्या होगा? 0, m will be 0, s can be plus half or minus half, so it will be a option 500 plus half। next question, 76th question, Rutherford's experiment which established the nuclear model of the atom used a beam of, so I have already told you he used helium nuclei which impinged on a metal foil and got scattered। अल्फा रेज यूज की थी। अल्फा रेज क्या होती थी यार? हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई, तो आंसर 76 का क्या होना है? डी। 77th question, the line spectrum of 2 elements can never be identical। क्यों? because they have different energy level schemes। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हर एक केस में अलग तरह से प्लेस्ड होगा और उसकी एक्साइटेशन भी डिफरेंट वेज में होगी, और जब एक्साइटेशन डिफरेंट वेज में होगी और डिफरेंट लेवल से होगी, डिफरेंट वेज में डिफरेंट लेवल से जब एक्साइटेशन हो रही है तो वापस भी इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट वेज से आएंगे, और डिफरेंट वेज से जब इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे, वापस जब डिफरेंट वेज से आ रहे हैं तो spectral lines will be obtained in different manner, different spectral lines will be obtained। therefore ये कहा भी जाता है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है एक एलिमेंट का, that is a fingerprint of that element। so answer in this case will be 77th का C option, because they have different energy level schemes। next question is 78th question, which set has same number of s electrons। तो इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाने हैं, केटाइंस हैं ये,
78 क्वेश्चन देखिए, तो इसमें देखिए वैसे आंसर इज बी इन दिस केस। कैसे है देखिए, वो बता रहा हूं मैं आपको। कॉपर 2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव एंड निकल 2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए यू हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इट इज 29, और 29 के लिए कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन, एंड आफ्टर दैट इट विल बी 3d10 एंड 4s1, एनॉर्मस कॉन्फ़िगरेशन है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। सो इसमें से कॉपर 2 पॉजिटिव मींस कितने इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं आपने। आर्गन 3d9, एक यहां से चला गया, एक यहां से चला गया, तो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रह गए इसमें? जितने आर्गन शेल तक हैं उतने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रह गए इसमें। नेक्स्ट इज Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल Fe कितना एटॉमिक नंबर? 26। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, इट विल बी आर्गन 18 यहां तक, and after that 3d6, and after that 4s2. This is the configuration of iron. Now he is asking for Fe2 positive, तो कौन से इलेक्ट्रॉन लूज हो गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज हो गए, we are left with Fe2 positive. Configuration is argon 3d6। तो कितने s इलेक्ट्रॉन्स हैं? जितने s आर्गन तक हैं, 1s2 2s2 2p6 and 3s2। तो जितने आर्गन तक है उतने ही ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी उतने ही है, इसमें भी उतने ही है। नाउ थर्ड केस इज निकल 2 पॉजिटिव। थर्ड इज निकल 2 पॉजिटिव, और इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, निकल के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। सो इट इज एटॉमिक नंबर इज 28। 28 के लिए लिखिए आप, इट विल बी argon 3d8 and 4s2. This will be configuration for nickel 28. Now he is asking for nickel 2 positive, so nickel 2 positive will be argon 3d8। 2 ये लूज हो गए यहां से, तो we are left with only s इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? जितने आर्गन शेल में। तो इन सारों में, तीनों केसेस में वी हैव सेम नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर विल बी बी, Cu2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी सारों में, और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, यू नीड नॉट राइट द होल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन जस्ट जज इट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79th क्वेश्चन। And 79th question is the minimum energy required to excite a hydrogen atom from its ground state is। मिनिमम एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक्साइट करना है ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को। कौन सी वाली बात हो रही है? E2 माइनस E1। मिनिमम एनर्जी टू एक्साइट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, तो एक्साइटेशन कहां से कहां करवानी है? फर्स्ट शेल से सेकंड शेल पे। सो वी हैव टू calculate E2 minus E1 in this case. We have to calculate E2 minus E1 in this case. And electron volts में क्योंकि आंसर है, तो it will be E2 क्या होता है? minus 13.6 upon n square, that is equal to 4, minus E1 minus 13.6 upon 1. We have to calculate this. This will be 13.6 minus 13.6 divided by 4. So it will be equal to, if we calculate this, this will be equal to 10.2 electron volts. This will be the answer, 10.2 electron volts. This question में he is asking for the minimum energy required to excite a hydrogen atom from its ground state. So it will be E2 minus E1. E2 की वैल्यू होती है minus 13.6 divided by n square, that is minus 13.6 divided by 4, और minus of minus 13.6 divided by 1 square, that is divided by 1, so it will be equal to 13.6 minus 13.6 divided by 4, and answer will be 10.2 electron volts. 80th question, next question.
the frequency of the first line of the Balmer series in the hydrogen atom is nu. The frequency of the first line of the Balmer series in the hydrogen atom nu given है. The frequency of the corresponding line emitted by the singly ionized helium atom is the 80th question. तो लैम्डा और न्यू में क्या रिलेशन है? लैम्डा एंड न्यू जो है, अगर आपने ये पूरा रेडबर्ग फॉर्मूला लिखने इसमें, तो दिस विल बी r इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर. लैम्डा इंटू न्यू जो है दैट इज इक्वल टू c. दैट मीन्स लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा विल बी इक्वल टू c upon nu. This will be equal to lambda is equal to c upon nu. Lambda is equal to c upon nu. ये वैल्यू डाली यहाँ पे. तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम. फ्रीक्वेंसी और इस पूरे रिलेशन का क्या डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज और फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, दैट मींस n1 n2 दोनों सेम है दोनों केसेस में. ये तो हाइड्रोजन के केस आ गया, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए न्यू अपॉन c जो भी होगी न्यू डैश अपॉन c विल बी इक्वल टू r इनटू z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ये फैक्टर्स दोनों सेम है, r इज सेम इन बोथ द केसेस. सारा डिफरेंस कहां से पड़ रहा है? z स्क्वायर से. ऊपर वाले केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम क्या दी हुई है? ये दिस इज इक्वल टू न्यू, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. इस केस में z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी न्यू डैश. इस केस में z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले का. इट इज सिंस इट इज न्यू नॉट, सो व्हाट शुड बी फ्रीक्वेंसी इन दिस केस? इट विल बी 4 न्यू नॉट. देखिए ऊपर वाला जो है, अगर उसमें और इसमें रिलेशन देखें आप, तो डिफरेंस कहां पे पड़ रहा है? बस z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी नीचे वाले केस की जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज दी हुई है. और फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन बाय सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम की बात हो रही है, तो हीलियम एटम के लिए z स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4. तो ऊपर के लिए फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट है, उसी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन की n1 n2 चेंज नहीं हो रहे हैं, n1 n2 आर नॉट गेटिंग चेंज्ड. सारा डिफरेंस यहां से z स्क्वायर से आ रहा है, तो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है. हीलियम पॉजिटिव में z स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो 4 से ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वाले केस में हीलियम पॉजिटिव वाले केस में फ्रीक्वेंसी शुड बी 4 न्यू नॉट. तो आंसर विल बी बी. For 81st question, for d electron the orbital angular momentum is. So 81st question, d electron के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है. आपको पता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? l into l plus 1 अंडर रूट ऑफ h अपॉन 2 पाई. और d इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू क्या होती है? इट इज 2. तो यहां 2 डाल दीजिए. 2 इंटू 2 प्लस 1, so it will be under root 6. h upon 2 pi is also written as h bar, so it will be under root 6 h bar, and it is A option. A is under root 6 h bar. 81st का A option. Next is 82nd question. The electronic configuration of an element is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. किसकी configuration है ये? क्रोमियम की. This represents its ground state. So it is not the excited state. ये ground state में ही क्रोमियम ऐसे exist करता है. 4s2 होना था एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन में. एक इलेक्ट्रॉन d में इसलिए आता है बिकॉज 3d5 हो जाएगा,
और 3d5 configuration जो है that is more stable configuration because it is half filled, और half filled configurations are more stable due to more symmetry and due to more exchange energy. So it is the ground state only. Answer will be B. 83rd question. Einstein's photoelectric equation states that Ek is equal to h nu minus w naught. In this equation, Ek refers to the maximum kinetic energy of the emitted electron. So it is maximum Ke, maximum kinetic energy of the ejected electrons. 82nd question. Sorry, 84th question. The energy levels for Za plus Z minus 1 can be given by or this will be A answer in this case. En for A plus Z minus 1 is equal to Z square into En for H. जो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी इन द nth लेवल होती है, nth शेल होती है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है Z स्क्वायर से जो एटॉमिक नंबर है जिस स्पीशीज की बात हो रही है, और यहाँ पे जिस स्पीशीज की बात हो रही है उसका एटॉमिक नंबर देखिए 84th क्वेश्चन. द एनर्जी लेवल्स फॉर Z, एटॉमिक नंबर क्या है स्पीशीज का? एनर्जी लेवल्स फॉर Z A plus Z minus 1. What is the atomic number for this species Z? तो आप Z स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दो, En फॉर हाइड्रोजन के केस में जो Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें अगर आप, that will give the En for A plus Z minus 1 Z. इसके लिए अगर En निकालना है nth लेवल में जो एनर्जी होगी इस केस में, that will be equal to Z square into En for hydrogen. This is the relation which you have to remember also because इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. और नेक्स्ट इसी के बेस पे न्यूमेरिकल है 85th question. The energy of the electron in the first orbit of helium positive is, this is energy is given and it is equal to minus 871.6 into 10 raised to power minus 20 joules. 85th question देखिए. The energy of the electron in the first orbit of hydrogen is, फर्स्ट ऑर्बिट में हीलियम पॉजिटिव के लिए गिवन है, और दिस शुड बी इक्वल टू Z स्क्वायर इनटू E1 फॉर हाइड्रोजन. ऊपर वाला रिलेशन अभी जो हमने किया, E1 फॉर He पॉजिटिव, दिस इज गिवन दैट इज minus 871.6 into 10 raised to power minus 20 into Z square. Z square क्या होगा हीलियम के लिए? It will be 4. 2 square is 4. 4 into E1 for hydrogen. और ये कैलकुलेट करना है आपने E1 for hydrogen. E1 for hydrogen will be equal to minus 871.6 into 10 raised to power minus 20 divided by 4. And if we calculate this, this will be equal to minus 217.9 into 10 raised to power minus 20 joules. So इस क्वेश्चन में ऊपर वाला जो रिलेशन किया था कि En for He positive will be equal to Z square into En for hydrogen. तो फर्स्ट ऑर्बिट में बात हो रही है तो E1 for He positive will be equal to E1 for hydrogen into Z square, और Z square for helium positive will be equal to 4 into E1 for hydrogen is equal to this much value given है for He positive की E1 जो फर्स्ट ऑर्बिट में He positive की एनर्जी है that is equal to this. आपको कैलकुलेट करना है E1 for hydrogen, और E1 for hydrogen will be equal to this divided by 4 and it will be equal to minus 217.9 into 10 raised to power minus 20 joules. C option. 86th question. The momentum of a photon of a frequency 5 into 10 raised to power 17 second inverse is equal to, momentum पूछ रहे हैं, frequency given है. So 86th question. आपको पता डी ब्रॉगली रिलेशनशिप कहता है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P. लैम्डा को आप
कैसे लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में? आपको पता है कि लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू सी, तो व्हाट विल बी लैम्डा? लैम्डा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी सी अपॉन न्यू। लैम्डा की जगह वहां से सी अपॉन न्यू डाल दें अगर, दिस विल बी रिलेशन। तो आपको मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम विल बी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, दिस विल बी पी। अब वैल्यूज डाल दीजिए इसमें। एच की वैल्यू आपको पता है दैट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34। न्यू की वैल्यू जितनी गिवन है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 17 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। So, ये वैल्यूज अगर डाल दें एच न्यू अपॉन सी, सारी वैल्यूज डाल दें, तो आंसर विल बी इक्वल टू इन दिस केस 1.1 into 10 raised to power minus 24 kg meters per second. It will be the answer in this case 1.1 into 10 raised to power minus 24. तो किया क्या मैंने, देखिए lambda is equal to h upon p. This is from the de Broglie concept. lambda की जगह फ्रीक्वेंसी डाली, lambda will be equal to c upon nu and p यहां से p ऊपर लेके जा रहा हूं और nu यहां को चला गया, c नीचे चला गया, तो p is equal to h nu upon c। अब जस्ट वैल्यूज डालनी है जो गिवन है, न्यू की वैल्यू जो गिवन है, c is the velocity of light 3 into 10 raised to power 8 meters per second, h is 6.6 into 10 raised to power minus 34 and it will be equal to 1.1 into 10 raised to power minus 24। तो ए ऑप्शन 86 का। 87th का, which best represents the emission spectrum of atomic hydrogen। तो पहली बात तो हाइड्रोजन एटम में डिस्क्रीट लाइंस होती हैं, सेवरल सीरीज होंगी डिस्क्रीट लाइंस की, और जिस केस में बोथ इंटेंसिटी एंड स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस डिक्रीजेस एज द वेव नंबर इंक्रीजेस विद इन ईच सीरीज। जैसे जैसे वेव नंबर इंक्रीज करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में, जो स्पेसिंग है बिटवीन डिफरेंट लाइंस दैट डिक्रीजेस। सो आंसर हैज टू बी सी 87 का, सेवरल डिस्क्रीट लाइंस ऑफ लाइन, series of lines with both intensity and spacing between the lines decreasing as the wave number increases within each series. Next is 88th question. The orbital diagram in which Aufbau principle is violated is। तो Aufbau principle क्या कहता है? Aufbau principle कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करनी है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाने चाहिए? उन ऑर्बिटल्स में जाने चाहिए विच हैव लोअर एनर्जी। किस केस में देखिए वायलेट हो रहा है? बी केस में। बी केस में वायलेशन ऑफ वो प्रिंसिपल की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे कैसे चलेंगे? जब फर्स्ट वाले में देखिए, अगर ये 2s से अगले वाले 2p हैं, तो 2s में इलेक्ट्रॉन एक ही है, सेकंड में बी ऑप्शन में देखिए आगे इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे जब तक उसकी पूरी फिलिंग नहीं हुई है। ए में किसका वायलेशन है? ए में इट इज Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, बिकॉज Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होनी है जब तक सारे के सारे जो इक्वल एनर्जी वाले डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगली फील्ड एंड दैट टू विद पैरेलल स्पिन्स। सो इसमें बी ऑप्शन में ऑफ प्रिंसिपल इज गेटिंग वायलेटेड, बिकॉज अगले वाले ऑर्बिटल्स में, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाने चाहिए थे जब तक लोअर ऑर्बिटल्स जो हैं, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, उनकी पूरी फिलिंग ना हो। तो इट विल बी बी। नेक्स्ट इज 89th क्वेश्चन, द ट्रायड ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज आइसोटोनिक इज। तो आइसोटोनिक स्पीशीज होती हैं वो वाली स्पीशीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 89th का आपने क्या चेक करना है बस कि न्यूट्रॉन्स किसमें बराबर हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज सारों में देखिए फर्स्ट केस देखिए ये वाला 14 minus 6 8, 15 minus 7 8, 17 minus 9 8. So all have 8 neutrons. So it will be A option in this case. The triad of nuclei that is isotonic is A option. 90th question. The atomic transition gives rise to radiation of frequency 10 raised to power 4 megahertz. The change in the energy per mole of atoms taking place would be 90th क्वेश्चन देखिए,
Atomic transition gives rise to radiation of frequency of 10 raised to power 4 megahertz. The change in energy per mole of atoms taking place would be energy is equal to E is equal to h nu. H की value 6.6 into 10 raised to power minus 34 और nu is given that is 10 raised to power 4 megahertz. इसको convert कर देना आपने into 10 raised to power 6 hertz में आ गया ये 10 raised to power 4 megahertz था तो 10 raised to power 4 into 10 raised to power 6 hertz में convert कर दिया तो this is the energy 6.625 into 10 raised to power minus 24 आएगा ये लेकिन उसने पूछा क्या है यहाँ पे उसने पूछा है the change in energy per mole of atoms एक मोल के लिए पूछ रहा है तो एक मोल के लिए कितना आ जाएगा for 1 mole for 1 mole the change in energy will be equal to 6.023 into 10 raised to power 23 एक मोल में इतने एटम्स होने हैं तो 6.023 into 10 raised to power 23 इसे मल्टीप्लाई कर दोगे into 6.6 into 10 raised to minus 24 and this will be equal to answer in this case is equal to 3.99 देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया एनर्जी निकाली इक्वल टू एच न्यू न्यू की वैल्यू गिवन थी उसको आपने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया इनटू 10 रेज़ टू पावर 6 करके जो ई की वैल्यू आ गई दैट इज फॉर वन एटम यहाँ पे निकालिए चेंज इन एनर्जी पर मोल ऑफ एटम्स पर मोल मींस आपने इसको मल्टीप्लाई करना विद द एवोगैड्रो नंबर व्हिच इज 6.023 into 10 raised to power 23 so it will be equal to 6.023 into 10 raised to 23 into this 6.6 into 10 raised to minus 24 and it will be equal to 3.99 so 90th का answer will be B option 3.99 next question is 91st question if there are three possible values minus half 0 plus half for the spin quantum number ms then electronic configuration of K 19 will be तो हर एक में क्या हो जाना है जहां पे दो इलेक्ट्रॉन आते हैं ऑर्बिटल में वहां कितने आ जाएंगे अब इस केस में 3 आ जाएंगे क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज हैं वो चेंज करती हैं वैसे प्लस हाफ माइनस हाफ होती है इसने कहा इफ देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज फॉर स्पिन क्वांटम नंबर देन हर एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स वैसे 2 आते हैं अब 3 आ जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो व्हिच शुड बी द करेक्ट ऑप्शन इट विल बी 1s3 2s3 2p9 3s3 and 3p1 this will be the correct option in this case जहां 2 आने हैं वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए आप इसका आंसर विल बी A 1s3 2s3 2p9 3s3 3p1 so next question 92nd question if traveling at equal speeds the longest wavelength of the following matter waves is that of longest wavelength किसकी आनी चाहिए of the matter waves आपको पता है कि लैम्डा जो है that is equal to h upon mv this is 92nd question लैम्डा और मास में क्या रिलेशन है इनवर्स रिलेशन लैम्डा ज्यादा किसमें होगा जहां मास कम होगा अब मास सबसे कम किसका है इलेक्ट्रॉन का तो सबसे ज्यादा लैम्डा किसका आना चाहिए it will be electron answer will be A in this case next is 93rd question light of wavelength lambda strikes a metal surface with intensity x and the metal emits gamma electrons per second of average energy z what will happen to gamma and z if x is halved so what should happen to the value of gamma and z if x is halved 93rd देखिए x को हाफ करने की बात हो रही है इंटेंसिटी को हाफ करने की बात हो रही है तो उससे इंटेंसिटी अगर हाफ करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने किया है कि इंटेंसिटी अगर चेंज करें
तो उससे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी विल रिमेन सेम। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करें तो एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज करें तो एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करती है। अगर इंटेंसिटी डिक्रीज या इंक्रीज करें उससे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें आंसर देखिए, व्हाट विल हैपन टू गामा एट z इफ x इज हाफ्ड। इंटेंसिटी को अगर हाफ करें तो गामा विल बी हाफ्ड, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो पर सेकंड वो हाफ हो जाएंगे, लेकिन z जो है एवरेज एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, दैट विल रिमेन सेम। तो सी आंसर इसका। 94th क्वेश्चन, atoms consist of electrons, protons and neutrons. If the mass attributed to neutron were halved and that attributed to the electrons were doubled, the atomic mass of 6C12 would be approximately 94th क्वेश्चन देखिए, इसने कहा atoms consist of electrons, protons and neutrons. If the mass attributed to neutron were halved and that attributed to the electron were doubled, the atomic mass किस पे डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पे। अब न्यूट्रॉन के मास को हाफ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मास को डबल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मास से तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 1/1837 द मास ऑफ प्रोटॉन, बहुत कम है, तो उसको डबल कर भी दें तो एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सारा फर्क पड़ रहा है न्यूट्रॉन से या फिर प्रोटॉन से। प्रोटॉन्स तो वैसे रह गए, 50% को तो कुछ नहीं किया, बिकॉज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल बी ऑलमोस्ट 50% ईच, और इसमें तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन केस ऑफ 6C12। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दे मेक द एटॉमिक मास। प्रोटॉन्स को कुछ नहीं किया, न्यूट्रॉन्स के मास को हाफ किया, तो न्यूट्रॉन्स कितना परसेंट है टोटल? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में न्यूट्रॉन्स कितना परसेंट है? 50%। 50% में चेंज लेके आ रहे हैं हम। 50% में कितनी चेंज लेके आ रहे हैं? न्यूट्रॉन्स के मास को हाफ कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द चेंज? 50% का भी हाफ, दैट इज रिड्यूस्ड बाय 25%। इट हैज टू बी डी ऑप्शन 94th का, रिड्यूस्ड बाय 25%. Next is 95th question. If the series limit of wavelength of Lyman series for the hydrogen atom is 912 angstrom, then the series limit of the wavelength for the Balmer series of the hydrogen atom is. Series limit means देखिए 1 by lambda, first case जो है, if the series limit of wavelength of Lyman series for the hydrogen atom is 912 angstrom. सीरीज लिमिट क्या होती है? और लाइमन सीरीज की क्या होगी? 1 by 1 square minus 1 by infinity square या फिर 1 by infinity only. This is the limiting line. तो लिमिटिंग लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, लिमिट सीरीज की बात हो रही है, सीरीज लिमिट की बात हो रही है, लिमिटिंग लाइन की बात हो रही है, एक ही बात होता है ये। तो दिस इज 1 by lambda is equal to r into 1 by 1 square लाइमन है, इसकी लिमिटिंग लाइन है minus 1 by infinity, तो this will be equal to r only. 1 by lambda is equal to r. और नेक्स्ट केस में क्या है बोलता, then the series limit for of wavelength for the Balmer series of the hydrogen atom will be, this will be r by 4. अब आपको यहाँ पे देखिए रिलेशन पता चल गया, यहाँ पे लैम्डा कितना दिया है इसका, लैम्डा दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 by 912। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए आर की वैल्यू आ रही है 1 divided by 912। यहाँ पे लैम्डा निकालना है ना आपको, लैम्डा विल बी इक्वल टू r by 4 by r. Lambda is 4 by r.
अब r की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, क्या है r की वैल्यू फर्स्ट से देखिए 1 by 912, so this will be 4 into 912, this will be the answer, and this is equal to 912 into 4 angstrom, that is C option. 95th question देखिए, if the series limit of wavelength of the Lyman series for the hydrogen atom is 912 angstrom, then the series limit of the wavelength for the Balmer series of the hydrogen atom is, Lyman के केस में 1 by lambda is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by infinity, limiting line है ये, so this will be r is equal to 1 by lambda, lambda की वैल्यू given है 1 by 912, तो r की वैल्यू आ गई 1 by 912. सेकेंड केस में 1 by lambda is equal to r into बाल्मर सीरीज की लिमिटिंग लाइन हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, तो दिस इज बाल्मर सीरीज n1 has to be 2, तो 2 square minus 1 by infinity, that is r by 4. निकालना है लैम्डा इस केस में, लैम्डा विल बी इक्वल टू 4 by r की वैल्यू ऊपर से डाल दी 1 by 100 1 divided by 912, so this will be 4 into 912 angstrom, answer will be C in this case. Next is 96th question, which among the following groups explains the photoelectric effect? So C is the correct answer in this case. किस किस के बीच में ग्राफ है देखिए यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस को इंक्रीज करते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. So what should be the correct option? It will be C option. Kinetic energy इसमें देखिए ग्राफ में ejected electrons की emitted electrons की increase कर रही है, जैसे जैसे mu increase कर रहा है. तो 96 का C option. 97th, which of the following species is isotonic with 37Y86? तो आपने क्या करना है इस केस में, दोनों केसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं. पहले तो देखिए 37Y86 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लीजिए, तो दैट विल बी 86 minus 37 you have to calculate, और जितने न्यूट्रॉन्स 37Y86 वाली स्पीशीज में आ रहे हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स ऑप्शंस में चेक करने किसके आ रहे हैं. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर इक्वल होंगे दोज स्पीशीज विल बी आइसोटोनिक. सो आंसर इन दिस केस विल बी सी. 38 strontium 87, it has the same number of neutrons as 37Y86. देखिए किया क्या है, ऊपर वाले में 86 में, नीचे वाले में 87 है, एक इंक्रीज कर दिया मास नंबर, ऊपर वाले में 37 है एटॉमिक नंबर, नीचे वाले में 38 है, तो डिफरेंस हैज टू बी सेम, और डिफरेंस सेम है तो दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम. तो 97th का C is the correct option. 98th question, the maximum energy is possessed by an electron when it is present. तो maximum energy कब होती है इलेक्ट्रॉन की, when it is present at the infinite distance from the nucleus. Infinite distance पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी is taken as 0. तो it will be 98th question. Infinite distance पे न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन infinite distance पे होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ली जाती है 0, and this is the maximum energy possessed by the electron. जब इसको आप towards the nucleus लेके आएंगे तो attractive force लगेगी, और due to attraction एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन. जब एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन तो 0 से कम एनर्जी हो जाएगी इसकी, दैट मींस की नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी. और दैट्स व्हाई जो मैंने वैल्यूज बताई थी En की, दे आर टेकन एज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, और क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी 0, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी possessed by an electron, and that will be answer will be 98 का D option at infinite distance from the nucleus. 99th question, if the nitrogen atom had electronic configuration 1s7, it would have energy lower than that of the normal ground state configuration 1s2, 2s2, 2p3, because the electrons would be closer to the nucleus, yet 1s7 is not observed because it violates. तो ये कह रहा है कि 1s7 होती है अगर कंफिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन नाइट्रोजन की, तो इलेक्ट्रॉन्स नजदीक होने थे, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होने थे, देयरफॉर एनर्जी क्या होनी थी इसकी, लोअर होनी थी, और एनर्जी अगर लोअर होती है तो इट शुड हैव बीन मोर स्टेबल कंफिगरेशन. लेकिन ये दिस इज नॉट फॉलोड, 1s7 इज नॉट फॉलोड क्योंकि इट वायलेट्स द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो ये पहले भी डिस्कस हुआ था कि 1s7 नहीं हो सकता, 1s3 भी नहीं हो सकता,
क्योंकि 1s3 हो जाएगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसकी जो चारों के चारों क्वांटम नंबर्स आएंगे दे विल बी सेम, फर्स्ट और इसका सेम आ जाएंगे, इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में हो ही नहीं सकता। therefore there can be maximum 2 electrons in an orbital. 1s7 will not be followed because it violates the Pauli's exclusion principle. 100th question is, an electron has kinetic energy 2.8 into 10 raised to the minus 23 joules. de Broglie wavelength will be nearly equal to. 100th क्वेश्चन में लैम्डा पूछा हुआ है और लैम्डा निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, h अपॉन mv, और h अपॉन mv के लिए मतलब वेलोसिटी चाहिए हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है दैट इज 2.8 into 10 raised to power minus 23. यहां से you will calculate v square, that will be 2.8 into 10 raised to power minus 23, ऊपर चला जाएगा 2 divided by mass of the electron, that is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kgs. This will be the mass. और यहां से आप v निकालोगे पहले, this can be calculated, v निकालोगे, जो v आएगा उसको यहां डालोगे आप और h की वैल्यू is 6.6 into 10 raised to minus 34. m is the mass of the electron, v will be the velocity which can be calculated from this equation, and the value of lambda in this case will be equal to 9.28 into 10 raised to power minus 8 meters. So this was the last question, 100th question, and this was atomic structure.